Okay, welcome everyone. आप सभी का हम स्वागत करते हैं। So turn with me to the book of Genesis. आइए मेरे साथ निकालिएगा उत्पत्ति की पुस्तक। Last time we have seen the introduction और पिछले समय में हमने इस पुस्तक का परिचय को देखा and था। I talked about various outlines और मैंने पिछले समय में जो है वो कई प्रकार के आउटलाइन के विषय में हमने right देखा through था। the book of Genesis. ये उत्पत्ति की पुस्तक के विषय में। And we have talked about the author of book of Genesis. और हम जो है इस उत्पत्ति के जो लेखक है उसके विषय में हमने देखा था। And we have also said, means we have seen from the scriptures that Jesus Christ confirmed that Moses was the author of book of Genesis. और हमने इस पुस्तक के द्वारा हमने देखा था कि प्रभु यीशु मसीह जो है इस बात को वो कंफर्म करता है कि इस पुस्तक का जो लेखक है वो मूसा है। So today onwards we are going to start Genesis chapter 1. और आज से जो है हम उत्पत्ति की पुस्तक उसके पहले अध्याय को हम शुरुआत करेंगे। Right, the first 5 books are written by Moses. और जो पहले 5 पुस्तक है वो मूसा के द्वारा लिखे गए हैं। And we are going to start with book of Genesis. और हम जो है वो उत्पत्ति की पुस्तक से आज It is also शुरुआत called the करेंगे। book of beginnings. और इसको जो है वो आरंभ की पुस्तक भी कहा जाता So है। before going to start this chapter 1, और इस पहले अध्याय को शुरुआत करने के पहले let me make some things clear. और कुछ बातों को मैं क्लियर करना चाहता हूँ। These Bible studies are for you as an outline for your individual study. और ये जो बाइबल अध्ययन है ये आपके व्यक्तिगत अध्ययन के लिए एक आउटलाइन के तौर पे है। These Bible study through the entire chapter verse by verse will help you to study individually in much more detail. और ये जो क्रमबद्ध बाइबल अध्ययन हम देखेंगे ये आपको व्यक्तिगत रीति से इसका उपयोग होगा। And there are a lot of things which are to be talked in the book of Genesis, और ऐसी बहुत सी बातें हैं जो उत्पत्ति की पुस्तक में बताई गई which है a single video cannot cover. और एक वीडियो के द्वारा जो है उसको कवर करना So संभव नहीं we'll है। start with Genesis chapter 1 and there are 31 verses. और हम जो है उत्पत्ति के पहले अध्याय को अभी शुरुआत करेंगे जो कि उसमें 31 वचन है। Right. So we'll pray and we'll start. Heavenly Father, we come before your throne of grace as we start the book of Genesis verse by verse. You help us, you lead us, you guide us, O Lord. Yes, Prepare our hearts, O Lord, for this study, to this entire chapter. So Lord, I pray that you breathe on us, O Lord. I pray that you give us something. I pray that you help us to live from here which we came, O Lord. I pray and submit this time into your hand. In Jesus' name I pray. Amen. आमीन। Okay, so verse 1. वचन 1। So verse 1, last time also we have seen in introduction, it is one of the simple statement. और वचन 1 जो है वो पिछले समय में परिचय के समय में भी हमने देखा कि वो एक सीधा और सरल वचन If है। you see the other religious books और अगर हम दूसरे धर्मों के अगर पुस्तकों को देखते हैं and read their beginning और अगर उनकी शुरुआत को अगर हम पढ़ते हैं and compare with this beginning, और इस शुरुआत के साथ अगर उसकी तुलना करते हैं this beginning is one of the simplest beginning even a child can understand. तो ये जो शुरुआत है ये एकदम सीधी और सरल शुरुआत है जो एक बच्चा भी उसे समझ सकता है। And when you read the chapters of book of Genesis chapter 1, और जब हम उत्पत्ति की पुस्तक उसके पहले अध्याय को पढ़ते हैं you will find that God is not trying to prove his existence. तो हम देखते हैं कि परमेश्वर जो है उसके अस्तित्व को वो प्रूव नहीं करता है। He doesn't want like I am there and he doesn't talk like that. और वो इस प्रकार से नहीं कहता कि मैं वहां पर हूँ और इस प्रकार से वो नहीं कहता। He didn't try to prove his existence, और वो जो है उसके अस्तित्व के विषय अस्तित्व को वो प्रूव नहीं करता, but he shows he is and what he does. परंतु ये वो बताता है कि वो है और उसने क्या क्या किया है। And God is real. और जो परमेश्वर है वो सच्चा है। We can experience him through our conscious and our creation. और उसके निर्माण के द्वारा और हमारे कॉन्शियस के द्वारा जो है हम उसका अनुभव ले सकते हैं। Right? If you see book of John chapter 1 verse 9. और अगर हम यूहन्ना उसके पहला अध्याय और 9वें वचन को देखते हैं, Right? If you are going to start with this Bible study और अगर आप इस बाइबल अध्ययन के साथ शुरुआत करते हो and believe that there is no God, और अगर आप ये विश्वास करते हो कि परमेश्वर नहीं है, God will not open himself or reveal himself to you. तो परमेश्वर जो है वो खुद को जो है आपके सामने खुला नहीं करेगा। So the first thing to understand the Bible और सबसे पहली बात इस बाइबल को समझने के लिए जरूरी है is you should have a believing heart. तो आपके पास एक विश्वासी हृदय होना जरूरी And है। if you have a believing heart, God will speak to you. और अगर आपके पास वो विश्वासी हृदय है तो परमेश्वर आपसे बात करेगा। Right? So John chapter 1 verse 9. यूहन्ना उसका पहला अध्याय और 9वां वचन। Read. सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है जगत में आने वाली थी। Right? That was the true light और वो सच्ची ज्योति थी which lighteth
every man that cometh into the world. जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है जो जगत में आने वाली थी। See, God, Jesus Christ is the true light. और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जो है वो सच्ची ज्योति है। If you want understanding of the scriptures, अगर आपको वचनों को समझना है it is that from true light you will get the enlightenment. तो वो जो सच्ची ज्योति है उसके द्वारा जो है वो प्रकाश हम प्राप्त करें। Right? So understanding of the scripture is from God. तो इस वचनों को जो समझना है वो परमेश्वर के द्वारा So है। you should believe that God is. तो आपने ये विश्वास करना जरूरी है कि परमेश्वर है, Right? Not with a skeptic mind. और एक सेप्टिक मन के द्वारा नहीं, परंतु परमेश्वर है ऐसा आप विश्वास Right? Not करना with a चाहिए। doubt that there is no God. और अपने मन में किसी भी प्रकार का हमें डाउट नहीं रखना है। If you go to Romans chapter 1 and verse 19, अगर हम निकालते हैं रोमियो की पुस्तक उसका पहला अध्याय और 19 वचन, because that which may be known of God is manifest in them, for God hath shewed it unto them. 1:19. इसलिए कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया है। Right? Now 20 says, for the invisible things of him from the creation of the world are clearly seen, being understood by things that are made, even his eternal power and Godhead, so that they are without excuse. उसके अनदेखे गुण अर्थात उसकी सनातन सामर्थ और परमेश्वरत्व जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं, यहाँ तक कि वे निरुत्तर है। So the invisible things of God जो परमेश्वर की जो अनदेखी बातें हैं are clearly seen from the creation, the Bible says. तो वो जो है वो जगत की सृष्टि से वो हम उसे क्लियरली देख सकते हैं। Means if you want to understand God, अगर आप परमेश्वर को समझना चाहते हो we can understand He can speak to us through the scriptures and also through creation. तो वो जो है इस उसके निर्माण के द्वारा और उसके वचनों के द्वारा वो हमसे बात कर सकता है। But if there is any man, परंतु अगर कोई ये मनुष्य है they say there is no God. और वो इस प्रकार से कहता है कि परमेश्वर नहीं है, Bible says he is a fool. तो वचन कहता है कि वो मूर्ख है। Right? Psalms 14 verse 1. और भजन संहिता 14 उसका पहला वचन, It is says the person who says there is no God, he is a fool. और वो इस प्रकार से कहता है कि अगर कोई मनुष्य कहता है कि परमेश्वर नहीं है तो वो मूर्ख है। If you take the Big Bang theory and the evolution, और अगर आप बिग बैंग थ्योरी और उत्क्रांति के जो थ्योरी है उसके विषय में देखते हैं, right? They are just theories, they are not fact. वो जो है वो एक सिर्फ थ्योरीज है, वो एक तथ्य नहीं है। But people place their belief in their theory. पर वो लोग जो है उस थ्योरी पर विश्वास करते हैं। Right? What Big Bang theory says और वो जो बिग बैंग थ्योरी है वो क्या कहती है that there was a Big Bang and we all came into from that. कि एक बड़ा बिग बैंग हुआ There और was ये one सब blast, सृष्टि you की can रचना say. हुई And all came, right? और ये सब निर्माण हुआ। And the other believe that evolution. और वो जो दूसरे जो लोग हैं वो उत्क्रांति पर विश्वास करते हैं। Right? They think that we evolved from some other animals और or some वो इस प्रकार से algae or amoeba. वो इस प्रकार से कहते हैं कि दूसरे जो प्राणी है उनके द्वारा हमारी उत्क्रांति हुई है। So what are these theories? तो ये जो थ्योरीज है ये क्या है? They are the deprived imagination of a man. वो जो है वो सिर्फ एक दुष्ट एक मनुष्य की वो एक कल्पना है। Right? The man's thinking is so degraded. और मनुष्य की जो सोच है वो इस प्रकार से नीचे की है, Right? So they come up with such imagination. कि वो जो है वो ऐसे इमेजिनेशंस के साथ वो आती है। Why? To reject God. क्यों वो परमेश्वर का अस्वीकार करने के If लिए। we have seen just Romans chapter 1, और अभी हमने देखा कि रोमियो की पुस्तक उसका पहले अध्याय, we just open that. And verse 21. और वचन 22, If you see, because that when they knew God, they glorified him not as God, neither were thankful, but became vain in their imagination, and their foolish heart was darkened. रोमियो 1:22 ना, 21. इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बढ़ाई और धन्यवाद न किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहाँ तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। Right? How is their imagination vain? और उनकी जो सोच थी वो कैसी थी, तो वो व्यर्थ थी, And that's why the heart became foolish. और इसीलिए उनका जो हृदय हुआ वो मूर्ख हुआ। 22 says, professing themselves to be wise, they became fools. और वचन 22 में लिखा है कि वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए। So if light is rejected, अगर ज्योति और प्रकाश जो है उसका अगर अस्वीकार होता है, God is giving his light.
परमेश्वर understanding. परमेश्वर जो है उसका प्रकाश वो दे रहा है, उसकी समझ को वो दे If रहा you है। reject that, अगर आप उसका अस्वीकार करते what हो will happen? That तो his क्या heart is become foolish, तो क्या होगा? तो आपका ये जो हृदय है वो मूर्ख हो जाएगा and the imagination get darkened. और आपकी जो सोच है वो अंधकार में हो जाएगी। So right from the Genesis 1:1, और उत्पत्ति उसके पहले अध्याय और पहले वचन से God rejects all those theories. तो परमेश्वर जो है इन सब जो थेरीज है उसका अस्वीकार करता है। Right? There are a lot of theories which we don't have much time to go into. और ऐसी बहुत सी थेरीज है और हमारे पास उतना समय नहीं है कि उसमें जाने के But लिए। in shortly, we'll say he denies atheism. This Bible, from the beginning, denies atheism, that there is no God. परंतु संक्षिप्त में हम देखते हैं कि वो जो थेरीज है और जो बाइबल है वो इन सब बातों का स्वीकार करता है Atheism, it और is. इथीज्म का वो स्वीकार करता है। Then there is polytheism. और पॉलीथिज्म जो है That उसका there are many gods like और that. बहुत से ऐसे परमेश्वर है उसका स्वीकार करता है। This evolution. और ये जो उत्क्रांति है उसका Right? अस्वीकार Then करता है। pantheism. और जो पैंथीज्म है Means in everything there is God like that. All. और हर एक बात में जो परमेश्वर है वो जो थेरी है उसका स्वीकार करता These है। are just imaginations, vain imagination. और ये जो है ये सिर्फ मनुष्य के व्यर्थ विचार है। But Genesis 1 verse is simple. परंतु उत्पत्ति 1:1 बहुत सरल और सीधा है। Verse 1 I'll read. In the beginning God created the heaven and the earth. और आदि में परमेश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी की सृष्टि की। Right? Genesis 1:1 begins with God. और जो उत्पत्ति 1:1 है वो परमेश्वर के साथ शुरू हुआ है। Last book of the Bible, Revelation chapter 22, ends with God. और जो प्रकाशित वाक्य जो बाइबल का जो आखिरी पुस्तक है वो उसका जो अंत है वो परमेश्वर के साथ हुआ है। Right? And if you see in Hebrew, और अगर हम हिब्रू में देखते हैं, there are इब्रानी में the देखते first हैं, verse is of 7 words. तो उनका जो उसका जो पहला वचन है वो 7 शब्दों से लिखा है। Right? Means in Hebrew, in the beginning God created the heaven is written in 7 words. जो आदि में जो परमेश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी की सृष्टि की, ये जो वचन है वो इब्रानी भाषा में वो 7 शब्दों में लिखा When गया we है। study the book, means the numbers, और we'll जब understand जब the हम अंकों meaning का of अभ्यास those करेंगे numbers. Right? तो The meaning हम of उसके the अर्थ को समझेंगे। So in English it is 10 words. तो अगर हम इंग्लिश में देखते हैं तो वो 10 शब्द है। Because English language is for us in this last day and age, God has preserved His word for the Gentiles. क्योंकि अंत के दिनों में जो इंग्लिश भाषा है वो हमारे लिए है और परमेश्वर ने उस भाषा को हमारे लिए प्रिजर्व करके रखा है। Right? For Gentiles. और वो अन्य जातियों के लिए है। Right? For us all. We were और वो Gentiles. हम सबों के लिए है। Right? So in verse 1, in the beginning God. और आदि में परमेश्वर ने। So right in verse 1, और पहले वचन में ही we have all elements of science. और हम जो साइंस के जो सभी एलिमेंट्स है, See, we'll see. In the beginning. आदि में परमेश्वर, Beginning. शुरुआत में, आदि में। Beginning is what? Time. और शुरुआत क्या है? वो समय है। Right? Then God created. और परमेश्वर ने सृष्टि की। Right? What He created? Heaven. तो उसने क्या किस बात की सृष्टि Space. की? स्वर्ग That is space. और स्पेस, Right? That is space means jaga, you can say. जगह। Right? Then created. That is a motion. और उसने सृष्टि की, मोशन की विषय। Created no, नहीं बनाया. और उसने बनाया, Right? सृष्टि की What is बनाया। created? और उसने किस हाँ, created. That is motion. और उसने जो आकाश और पृथ्वी की जो रचना की, That is motion. वो मोशन है। Means I am talking about the elements. We'll see. Elements of science. The science is based on these elements, right? और ये जो विज्ञान है वो इस एलिमेंट्स पर निर्धारित है। They talk about time. और वो समय के विषय में बात So the करते हैं। beginning word is talking about the time. जो आदि में जो शब्द है वो समय के विषय में बताता Then है। it talks about space. और उसके बाद वो जो है वो जगह के विषय में बताते हैं। That is heaven. और वो स्वर्ग है। Right? Then we can say the matter. और उसके बाद हम देखते हैं कि वस्तु। In verse 1, is there any matter? Yes, earth. और वहाँ पर Matter. Earth. पृथ्वी। The earth is the matter, right? और Then created. Created is a motion. और ये जो सृष्टि की ये जो है ये मोशन के विषय में बताता Right? है। Motions, what you can say in motion? Halchal, you can say. हलचल के विषय में बताता है। Right? Then we have energy. और उसके बाद हम देखते हैं ऊर्जा के विषय में Right? God created. That is the energy. कि God परमेश्वर ने Himself उसकी is the energy. परमेश्वर ने उसकी सृष्टि की और परमेश्वर खुद वो ऊर्जा है। So right in Genesis 1:1, we have all elements of science. और उत्पत्ति उसके 1:1 में हमारे पास वो विज्ञान के सारे एलिमेंट्स है। Right? So the Bible says God created the heaven and the earth. और आदि में परमेश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी की सृष्टि की। But what modern Bibles do, they change that word heaven to heavens, plural.
और हम देखते हैं कि जो अभी के जो मॉडर्न बाइबल से उन्होंने उस heaven को, जो स्वर्ग को, स्वर्ग को they have changed to plural heavens, और उन्होंने स्वर्गों उसको अनेक वचन में बदला है। right? But in Genesis 2:1, परंतु उत्पत्ति उसके दूसरे अध्याय और पहले वचन what में the Bible says, thus the heavens and the earth were finished. और आकाश और पृथ्वी और उनकी सारी सेना का बनाना समाप्त हो So गया। if you see, Genesis 1 has singular heaven, और हम देखते हैं कि उत्पत्ति 1:1 में जो है वो जो स्वर्ग है वो एक वचन है right? And Genesis 2:1 there are plural. और उत्पत्ति उसके दूसरे अध्याय में हम देखते हैं कि जो स्वर्ग है वो अनेक वचन है। Right? But what Bibles do, they change everything, and they have lost the references. परंतु अभी जो बाइबल से उसमें हम देखते हैं कि वो उसमें ये सब बातें खोई हुई है। So what is talking about? The first there was singular heaven, और सबसे पहले जो स्वर्ग है वो एक वचन स्वर्ग है, right? Genesis 1:1. उत्पत्ति 1:1 में। Then after God created, we'll see in chapter 1. Then chapter 2 says there were heavens. और दूसरा जो अध्याय है उसमें पहला अनेक वचन। वचन जो स्वर्ग का उपयोग किया गया है। Right? In Hindi we can call swargo, स्वर्गो right? So swarg, heavens plural. There are 3 heavens, और 3 प्रकार के स्वर्ग है and that we'll see in further Bible studies. और जो आगे की जो हमारे बाइबल अध्ययन होगा उसमें हम उसे Right? But देखेंगे। the 3 heavens were made after the 6 days. और ये 6 दिनों के बाद जो है वो 3 स्वर्गों की रचना की गई। Right? But before Genesis 1:1 there was singular heaven. और उसके पहले उत्पत्ति 1:1 में वो जो स्वर्ग है वो एक है। So verse 2 will see, the earth was without form and void, and darkness was upon the face of the deep, and Spirit of God moved upon the waters. और पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। So we see in Genesis 1:1 God created everything. और उत्पत्ति 1:1 में हमने देखा कि परमेश्वर ने सब बातों की सृष्टि की। So how that verse 2 says that the earth was without form and void. तो किस प्रकार से वचन 2 में इस प्रकार से लिखा है कि पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी। So is the verse 2 describing the God's creative work or his judgment? और वचन 2 जो है वो परमेश्वर के निर्माण को वो बताती है या उसके न्याय को वो बताती What है। do you think? His क्या आप judgment क्या or his सोचते हो? creation? Right, उसका- there are, हाँ. उसके न्याय के विषय में वो बताती है या उसके निर्माण के विषय में वो You're बताती saying है। judgment, right? There are many people who say that there is no such thing as the gap between verse 1 and 2. और ऐसे बहुत से लोग हैं जो इस प्रकार से कहते हैं कि वचन 1 और वचन 2 में किसी भी प्रकार का अंतर नहीं है। That is an entire different topic. पर वो जो है वो एक अलग विषय है। But what I believe, परंतु मैं क्या विश्वास करता हूँ by comparing scripture with scripture, और मैं वचनों को और एक वचन को एक दूसरे से तुलना करता हूँ by allowing the Bible to interpret itself, और वचन को खुद उसमें उसके द्वारा बोलने देता हूँ। I believe that this Genesis verse 2 is a judgment of God. और मैं ये विश्वास करता हूँ कि ये दूसरा जो वचन है ये परमेश्वर का न्याय है। Not by my thinking or why someone said, because what the Bible, the scripture tells me. और ये मैं क्या विश्वास करता हूँ और कौन क्या कहता है इसकी वजह से नहीं, परंतु वचन ही हमें बताता है। So I think Genesis 1:1, और मैं ये सोचता हूँ कि उत्पत्ति 1 और 1 that is the creation. वो निर्माण करना है। Right? God created. वो परमेश्वर ने उसका निर्माण किया है। And Genesis 1:2, और उत्पत्ति 1 और उसके दूसरे वचन में I see the destruction, और हम देखते हैं कि उसके डिस्ट्रक्शन के विषय में, nash. नाश के विषय में। And verse 3, और वचन 3 में I see recreation. और हम फिर उसके पुनर्निर्माण के विषय में देखते हैं। Right? So I see this pattern. और मैं ये पैटर्न को देखता हूँ। And this recreation, और ये जो पुनर्निर्माण है God created in 6 literal days. और परमेश्वर ने जो है उसके 6 दिनों में उसका पुनर्निर्माण किया है। There are many people who are Bible believers who reject the gap theory. और ऐसे बहुत से लोग हैं जो बाइबल पर विश्वास करते हैं परंतु वो जो है वो इस गैप थ्योरी को स्वीकार नहीं करते। But from the Bible, I think it is not gap theory, but is a gap fact. परंतु मैं ये गैप थ्योरी है ऐसा विश्वास नहीं करता हूँ, परंतु ये एक अंतर वाले तथ्य है ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। Right? Why they reject it? और वो इसका अस्वीकार क्यों करते हैं? They think that the gap theory allows us that this means that it is a compromise to evolution theory. और वो इस प्रकार से सोचते हैं कि ये जो गैप थ्योरी है वो उत्क्रांति के लिए एक कॉम्प्रोमाइजेशन है। Right? Means people think that there is a gap between day 1 to thousands of years of gap. और वो इस प्रकार से सोचते हैं कि जो पहला दिन है और दूसरा दिन है और तीसरा दिन है उन 2 दिनों के बीच में हजारों वर्षों का काल है। But that is not what
the scripture says. परंतु ये जो है ये वचन इस प्रकार से नहीं बताता है। There are evidence of gap theory, और biblical evidence, जो गैप थ्योरी है उसके भी कुछ एविडेंसेस है and from the scriptures we can see. और वचनों के द्वारा हम उसे देख सकते हैं। But we'll create an entire different video for that. परंतु हम जो है उसके लिए एक अलग से वीडियो But I बनाएंगे। will tell you some simple things. See, Genesis 1:1 starts in the beginning, right? और उत्पत्ति 1:1 जो है वो आदि में उसकी शुरुआत हुई। But verse 2, 3, 4, 5, 6, it starts with and. और वचन 2, 3, 4 और 5 है वो और इस प्रकार से उसकी शुरुआत हुई है। Right? Means the narrative is moving forward. और ये जो अध्याय है वो ये जो वचन है ये आगे की ओर चल रहे हैं। It is narrative is not moving backwards. और वो जो है वो पिछले की ओर नहीं परंतु आगे की ओर चल रहे If you हैं। see the first word created in verse 1, और पहले वचन में हम जो शब्द देखते हैं कि सृष्टि की, he created everything from nothing. और कुछ भी नहीं था और उससे जो है परमेश्वर ने सब बातों की सृष्टि की। First he said created in 1:1, और वचन 1:1 में उसने उन बातों की सृष्टि की। and we'll see the single day, we'll see he said made, और हम देखते हैं कि उसने कहा कि banaya. बनाया। I don't know what is the exact word for made. उसने बनाया। Right? The made means it was pre-existed. और मेड और उस शब्द का जो अर्थ है कि वो पहले से ही वहां पर है। And we see that there is also type of salvation. और हम देखते हैं कि उद्धार के भी कई टाइप है, प्रकार है। This creation here, what I have written, is a picture of man created. और ये जो है ये मनुष्य के निर्माण का चित्र है। Then what happened? Sin came in his life, और हम देखते हैं कि उसके बाद जो है वो पाप आया and then he need to be regenerated. और उसके बाद जो है उसको फिर से बनाना पड़ा। Right? Regenerated by spirit means he was born और वो again. आत्मा के द्वारा उसका पुनर्निर्माण हुआ। So it also shows this type. और वो जो है वो इस प्रकार को भी वो दिखाता है। So there is a Genesis gap between verse 1 and 2. और इस प्रकार से हम देखते हैं कि वचन 1 और वचन 2 में अंतर है। Right? Is the fall of Lucifer. क्योंकि यहाँ पर जो है वो शैतान की गिरावट है। It's God's judgment in response to Lucifer. और वो जो है वो शैतान के प्रति वो परमेश्वर का न्याय है। So, but one thing remember that God recreated everything in literal 24 hours, 6 days. परंतु हमें ये बात ध्यान में रखना है कि परमेश्वर ने जो पुनर्निर्माण का कार्य है वो 6 दिनों में पूर्ण किया What है। Romans 3:4 says? और रोमियो 3:4 क्या कहता है? That everyone is a liar. कि हर एक जो है वो झूठा है। Right? If you see Pope John Paul II and all the liberal people, what they say that the early chapters of Genesis are a myth. और Pope John Paul और जो II पोप जॉन पॉल Second. है वो इस प्रकार से कहते हैं कि all these early chapters are a myth. और ये जो शुरुआती के जो अध्याय है वो सब झूठे हैं, मिथ है। Myth means कहानियाँ, we can say. वो कहानियां हैं They are made up things. और वो बनाई हुई But कहानियां हैं। Bible doesn't say so. परंतु बाइबल जो है वो इस प्रकार से नहीं कहता Verse है। 4 says, God forbid, yea, let God be true, but every man a liar. कदापि नहीं, वरन परमेश्वर सच्चा और हर एक मनुष्य झूठा ठहरे। Right? I am quoting half verse, but Bible says, but every man a liar. Every man is a liar. परंतु वचन कहता है कि हर एक मनुष्य झूठा है। So don't believe what I say. परंतु मैं जो कहता हूँ इस पर आप विश्वास ना करें, Study for yourself also. पर आप खुद के लिए उसका अध्ययन करें। So we'll see now. We have seen verse 1 and verse 2. We'll talk when we study the Genesis gap. और वचन 1 और वचन 2 को हमने देखा और जब हम उसके अंतर के विषय में पढ़ेंगे तब हम उसके अंतर को देखेंगे। See, verse 2 also there was darkness. और वचन 2 में हम देखते कि वहां पर अंधियारा था। How this darkness came? वो अंधियारा किस प्रकार से आया? And the Spirit of God moved upon the face of waters. और परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। See, in short, I will see there are 3 heavens. और संक्षिप्त में बताता हूँ कि 3 प्रकार के स्वर्ग है। This is the earth where we live. और ये जो है ये पृथ्वी है। This is the first heaven where birds fly. और वो पहला स्वर्ग है जहाँ पर पक्षी उड़ते हैं। This is the space और वहाँ पर एक अंतर है, जगह है। where the sun, moons, and stars are. और जहाँ पर सूर्य और सब बाकी तारे हैं। This is the second heaven. और वो जो है वो दूसरा स्वर्ग है। Right, but above the second heaven here, और दूसरे स्वर्ग के ऊपर there is a sea of glass. तो वहाँ पर एक कांच का एक समुद्र है। Right,
and above that there is a third heaven. और उसके ऊपर जो है वो तीसरा स्वर्ग है। So as we are going to see day 1, 2, 3, 4, 5, और जिस प्रकार से हम देखेंगे कि पहला दिन, दूसरा दिन और तीसरा दिन, we'll see how God divided everything. और हम देखते हैं कि परमेश्वर किस प्रकार से हर एक बातों को विभाजित Right करता है। from Genesis 1, God is a divider. और पहले वचन से हम देखते हैं कि परमेश्वर जो है वो He विभाजन doesn't like करने वाला light है, and darkness coming together. और वो नहीं चाहता है कि जो प्रकाश और जो अंधियारा है वो एक साथ आए। So we believe that 6 days are the literal 6 days. और हम ये विश्वास करते हैं कि वो जो 6 दिन है वो सही में वो 6 दिन है। But there is other reference also in 2 Peter, if don't open, but 3:8. What it says, for the Lord 1 day is 1,000 days and 1,000 days is the 1 day. Right? और जो दूसरा पत्र से उसका 3:8 में इस प्रकार से कहा गया है कि परमेश्वर के लिए एक दिन 1000 वर्षों के बराबर है और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है। The day is called like it can be 1,000 years. और एक जो दिन है वो 1000 वर्षों के समान है। But we have to when to apply this formula? और हमें जो है ये जो फॉर्मूला दिया गया है इसको अप्लाई कब करना है? When the context supports that formula. परंतु जब जो कॉन्टेक्स्ट है, जो अध्याय है वो उसको सपोर्ट करता है तब। The context is restricting to use 1,000 years for each day. परंतु The context, the text also, our text, और जो अभी जो हम देख रहे हैं वो जो टेक्स्ट है, to take the each day as 1,000 days. और वो जो है एक दिन 1000 वर्षों के बराबर लेने के लिए हमें उस बात की अनुमति नहीं देता है। Why? Because every day after end it says evening and morning. क्योंकि हर एक वचन के अंत में इस प्रकार से लिखा है कि सांझ हुई फिर भोर हुआ। Right? What are evening and morning? It is day. It is 24 hours. और वो सांझ हुई और फिर भोर हुआ, ये क्या है? तो ये 24 घंटों का एक दिन है। So the context is telling that it was the 24. और वचन यहाँ पर बताता है कि ये 24 घंटे का दिन था। And not means there are thousands of days between single days. और वो ये नहीं है कि 2 दिनों के अंतर में बहुत से हजारों दिनों का अंतर है। If some believes that there are gaps between each day, 1,000 years. और अगर कोई इस प्रकार से विश्वास करता है कि 2 दिनों के अंदर हजारों दिनों का अगर अंतर है, The vegetations which were created on day 3, और plants which were created on day 3, और जो तीसरे दिन जो पेड़ पौधे को निर्माण किया गया, how can they survive till day 4? Because on day 4 the light was there, sun was. और वो किस प्रकार से वो चौथे दिन तक वहां पर जीवित रहे, क्योंकि चौथे दिन वो सूरज का निर्माण हुआ। So I want to tell why God specifically used these 6 days. और परमेश्वर, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने क्यों इन 6 दिनों का उपयोग किया है। To teach Israel. वो इजराइल को सिखाने के लिए, To teach Israel about Sabbath. और इजराइल को शब्बात के विषय में सिखाने के लिए। Right? If you go Exodus chapter 20 and 8 to 11, you can read God specifically told them regarding the 6 days. और निर्गमन की पुस्तक में अगर हम देखते हैं तो हम ये देखने पाते हैं कि परमेश्वर इजरायली लोगों को ये स्पेसिफिकली ये 6 दिनों के विषय में बताता है। Then we see that the 7 और उसके बाद हम देखते हैं कि जो 7 is a number of God's completion, of completeness. और 7 जो है वो पूर्णता को दिखाता है। 7 completion, पूर्णता को दिखाता है। Throughout the Bible, whenever you come across the 7, you will find completion. और हम पूरे बाइबल में हम जब कभी भी 7 अंकों को देखते हैं तो हम एक पूर्णता को देखते हैं। And 7,000 years और 7000 वर्ष talks about human history. तो वो जो है वो मनुष्य के इतिहास के विषय में बताते हैं। Human history, right? So also another thing I would like to say, that word good, और ये जो शब्द है good, अच्छा, made, और बनाना, then heaven, और स्वर्ग, then earth, और पृथ्वी, then God, परमेश्वर, these all appear 7 times in this chapter. और ये सब जो शब्द है वो इस अध्याय में 7 बार उसका उल्लेख किया गया है। 7 times and in the multiple of 7. और वो 7 बार और उसके मल्टीपल में वो 7 बार उसका उल्लेख किया गया है। Right, means all this means there are 7 is loaded. This chapter is loaded with 7. और ये जो अध्याय है वो इस 7 अंकों से वो भरा है। The entire Bible has the number 7. और पूरे बाइबल में हम देखते हैं कि जितना 7 अंक का उपयोग नहीं वो उतना यहाँ पर है। So with this belief that each day represents literal 24 hours, we'll और move forward. ये विश्वास के साथ में कि हर एक जो दिन बताता है वो 24 घंटे का एक दिन है। So we'll start with day 1. तो हम पहले दिन से उसकी शुरुआत Verse करते हैं। 3. God said, let there be light, and there was light. और तो जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो तो उजियाला हो गया। Right. Now the sun appears on day 4.
और हम देखते हैं कि जो सूरज जो है वो चौथे दिन दिखाई दिया, But what kind of light is this? परंतु ये किस प्रकार का उजियाला है? It is God Himself light. और वो परमेश्वर का खुद का वो उजियाला है। Right? In Revelation, we talked about that there was no light, but He was light. और हम प्रकाशित वाक्य में हम देखेंगे कि वहां पर किसी भी प्रकार का उजियाला नहीं होगा, परंतु परमेश्वर खुद वो उजियाला And there are references also in Psalm 104 verse 2. You at your own individual study you can look up there. और कुछ कुछ रेफरेंसेस भी है, जैसे भजन संहिता की पुस्तक, उसमें से भी कुछ रेफरेंस है, आप खुद के अध्ययन में उसे देख सकते हो। So God Himself is a light. That was this परमेश्वर light. खुद वो उजियाला है, वो ये उजियाला है। What the verse says, there was, let there be light, and there was light. और जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो तो उजियाला हो गया। Verse 4 says, God saw the light that it was good, and God divided the light from darkness. और परमेश्वर ने उजियाले को देखा कि अच्छा है, और परमेश्वर ने उजियाले को अंधियारे से अलग In किया। the Bible, if you see the references of darkness and night, और अगर हम बाइबल में से अगर उजियाला और अंधकार के विषय में अगर कुछ रेफरेंसेस देखते these हैं, all are connected with Satan and his kingdom. तो वो जो है वो शैतान और उसके राज्य से निगड़ित है। Right? That's why the darkness. और इसीलिए ये जो अंधियारा है, The second day we will see he didn't call it good. और इसीलिए वो दूसरे दिन जो है उससे अच्छा नहीं कहता है। So we'll see why. Okay. और हम देखते हैं क्यों। So verse 5 said, and God called the night day, light day. और Verse 5, परमेश्वर and ने the उजियाले को darkness दिन, He called night, and the evening and the morning were the first. और परमेश्वर ने उजियाले को दिन और अंधियारे को रात कहा, तथा सांझ हुई फिर भोर हुआ, इस प्रकार पहला दिन हो गया। So the simple, सरल, the light. जो उजियाला है, If you see light divided, right, from darkness. और जो उजियाला है वो अंधकार से उसका विभाजन किया गया, In that was the first day. और वो पहला दिन था। That is the first thing God did, that He divided. और सबसे पहली बात परमेश्वर ने की वो विभाजन किया। And the first thing that God wants you to study, to show thyself approved unto God, rightly dividing the word of truth. और परमेश्वर हमारे लिए भी सबसे पहले ये चाहता है कि हम परमेश्वर के इस प्रकार से वचन को विभाग नहीं करना, और परमेश्वर के वचन को हम ठीक रीति से विभाजन करें, right? Rightly we should divide the word of God. और ठीक रीति से जो है वो परमेश्वर के वचन को हम विभाजित करें। Right? If you only divide and compare scripture with scripture, God will speak to you. अगर हम उसका विभाजन करेंगे और सिर्फ वचनों की हम तुलना करेंगे तो परमेश्वर उसके द्वारा So the हमसे बात first thing करेंगे। is God divided light from darkness. और सबसे पहली बात परमेश्वर ने की कि परमेश्वर ने अंधियारा और उजियाले को अलग किया। Now we'll go to the second day. और हम अभी जो है हम दूसरे दिन की ओर जाएंगे। See verse 5, verse 6. And God said, let there be firmament in the midst of waters, and let it divide the waters from the waters. और फिर परमेश्वर ने कहा, जल के बीच एक ऐसा अंतर हो कि जल दो भाग हो जाए। See, what it is called for firmament, and let there be a firmament in the midst of water. वचन 6 का Verse 6 means फिर परमेश्वर ने कहा, जल के बीच एक ऐसा अंतर हो antar, कि जल दो भाग हो जाए। firmament. Okay. अंतर, Okay, antar, but the firmament is a space. अंतर। Firmament. So God, what He did, let there be a firmament in the midst of waters. और जल के बीच एक ऐसा अंतर हो, Means everywhere the universe was covered with water. और ये पूरा जो विश्व था वो पानी से भरा हुआ था, And in the midst of water, we see God told that let there be firmament. और वो पानी के अंतर परमेश्वर ने कहा कि उसमें अंतर हो जाए। And what He said, let it divide the waters from the waters. और जल के बीच एक ऐसा अंतर हो कि जल दो भाग हो जाए। Right? Means there was water above and water beneath. और वो इस प्रकार से हो कि ऊपर भी पानी रहे और नीचे भी पानी रहे। Now see, this is the key that you will understand that God created three heavens. और ये जो है There are three heavens. Sorry. ये हमारे लिए ये एक कुंजी है जिसके द्वारा हमें पता लग सकता है कि परमेश्वर ने तीन स्वर्गों का निर्माण किया। See, the firmament in verse C, what He called that firmament, we'll see. Verse 7, but God made the firmament and divided the waters which were under the firmament from the waters which were above the firmament, and it was so. और तब परमेश्वर ने एक अंतर बनाकर उसके नीचे के जल और उसके ऊपर के जल को अलग अलग किया, और वैसा ही हो गया। Right, and then verse 6 says, what 8 says, and God called the firmament heaven, and the evening and the morning were the second day. और परमेश्वर ने उस अंतर को स्वर्ग कहा, तथा सांझ हुई फिर भोर हुआ। So what we can learn from this?
तो इससे हम क्या सीख सकते हैं? that God called that space और परमेश्वर वो जो जगह है, वो जो स्पेस है, उसे क्या कहता है? heaven. स्वर्ग कहता है। He called it heaven. So the firmament, what it did, it divided the waters, और वो अंतर क्या करता है? तो वो पानी को विभाजित करता है, right? It divided the water. और वो पानी को विभाजित But करता है। remember this thing, the second day, God didn't call it good. परंतु एक बात याद रखिए, ये जो दूसरा दिन है, इसे परमेश्वर अच्छा दिन नहीं कहता है। Like I said before, और मैंने इसके पहले मैंने जैसे बताया, see, this is the first heaven, second heaven, and third heaven. पहला स्वर्ग, दूसरा स्वर्ग और तीसरा स्वर्ग। This is the third heaven. और ये जो है, ये तीसरा स्वर्ग है। But earlier there was means the earth was full of water. और शुरुआत के Earth, दौर no, sorry, the entire universe was full of और water. शुरुआत के दौर पे हम देखते हैं कि जो पूरा विश्व है वो पानी से भरा हुआ And था, there was made a firmament. और उसके मध्य में एक अंतर बनाया गया। Right? And what was there? Above waters and below waters. और वो क्या था कि वो ऊपर की ओर पानी था और नीचे की ओर भी पानी था। Right? And so this became the sea of glass. और वो जो है, वो एक कांच का एक समुद्र बना। And this is the where earth is. और ये जो है यहाँ पर पृथ्वी है। Right? This is the first heaven. और This ये is जो है, the ये पहला स्वर्ग है, second heaven, and this is third heaven. और ये दूसरा स्वर्ग है, और ऊपर की ओर तीसरा स्वर्ग है। That is important to understand. You understand this. और ये महत्वपूर्ण है इन बातों को समझना। The third heaven is God's throne. और ये जो तीसरा जो स्वर्ग है, वो परमेश्वर का सिंहासन है। Right? Right? But the second heaven, परंतु जो दूसरा स्वर्ग है, that is the primary habitation of the Satan and his angels. और जो शैतान और उसके जो दूत है, उसका वो रहना। उसके रहने की वो जगह है, दूसरा Right? स्वर्ग। He is in second heaven. और वो दूसरे स्वर्ग में है। That's why God doesn't call the second day what he did in that good. और He didn't call इसीलिए it good. दूसरे दिन में जो परमेश्वर ने किया, उसने उसे भला नहीं कहा। Right. So if you open Job chapter 38, अगर आप मेरे साथ निकालिएगा अय्यूब की पुस्तक, उसका 38वां अध्याय and verse 30. और 30 वचन। Job chapter 38 and verse 30. What verse is? And the waters are hid as with a stone, and the face of the deep is frozen. और जल पत्थर के समान जम जाता है, और गहरे पानी की सतह जम जाती है। Right, the face of the deep, is frozen. और ये जो जल है, वो जम जाता है। हाँ. Read the entire verse again. जल पत्थर के समान जम जाता है, और गहरे पानी की सतह जम जाती है। Right, the गहरे पानी की सतह, face, the face of the deep is frozen. और गहरे पानी की जो सतह है, वो जम जाती And है। same in verse Genesis 1:2, the face of the deep is there. What happened? The Spirit of God moved upon the face of waters. और वचन 2 में हम देखते हैं कि परमेश्वर का जो आत्मा है, वो उस जल के ऊपर मंडराता है। Above that water, who is it? The God's throne. और वो पानी के ऊपर क्या है? तो वो परमेश्वर का सिंहासन है। Right. So Genesis 1:2 is a judgment, we can see. और हम देखते हैं कि उत्पत्ति उसका दूसरा जो वचन है, वो न्याय का वचन है। So we see the second day he didn't call good. और हमने देखा कि दूसरा स्वर्ग और दूसरे दिन को जो है, वो परमेश्वर एक अच्छा दिन नहीं कहता है, Because second heaven is not good. क्योंकि जो दूसरा स्वर्ग है, वो भला ठीक नहीं है, The darkness is there. क्योंकि अंधियारा वहां पर है। Right? When Bible talks about that is the habitation of Satan and his angels. और वचन इस प्रकार से कहता है कि वो शैतान और उसके दूतों का वो रहने की जगह है। Now we'll go to verse day 3. और अभी जो है, हम तीसरे दिन की ओर Verse जाएंगे। 9. And God said, let the waters under the heaven be gathered together unto one place, and let dry land appear, and it was so. और फिर परमेश्वर ने कहा, आकाश के नीचे का जल एक स्थान में इकट्ठा हो जाए और सूखी भूमि दिखाई दे। So we see the seas appear. Sea. और हम देखते हैं कि एक समुद्र वापस I'll दिखाई read देता verse 10. And God called the dry land earth, and the gathering together of the waters he called seas. And God saw that it was good. और परमेश्वर ने सूखी भूमि को पृथ्वी कहा, तथा जो जल इकट्ठा हुआ उसको उसने समुद्र कहा, और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। So in third day what he did? Seas were created. और तीसरे दिन उसने क्या किया? तो समुद्र का निर्माण किया। Right? See, there was enough water in the universe to और cover the entire earth. और हम देखते हैं कि विश्व में जो है, वो बहुत सा पानी था। Right? That's why in the Noah's we can see flood. और इसीलिए जो नूहा के समय में हम देखते हैं कि वो जो बाढ़ There है, are water above also. और कि ऊपर भी पानी था। Right? And God
opened the windows of heaven, Bible says. और हम वचन इस प्रकार से कहता है कि उसने स्वर्ग की खिड़कियों को खोल दिया। Then so in the third day, what he did, the below the firmament which the waters were there, see on the earth, what he did, he created the seas, right? और हम तीसरे दिन परमेश्वर ने क्या किया कि वो अंतर के नीचे का जो जल था उसमें उसने समुद्र को और उस भूमि को बनाया। Then now is 11 the same day, and God said, let the earth bring forth grass, and the herb yielding seed, and the fruit yielding fruit after his kind, whose seeds is in itself upon the earth, and it was so. फिर परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी से हरी घास तथा बीज वाले छोटे छोटे पेड़ और फलदायी वृक्ष भी, जिनके बीज उन्हीं में से एक एक की जाति के अनुसार है, पृथ्वी पर उगे, और वैसा ही हो गया। See, now if you see the God, it doesn't say the God created. और हम देखते हैं कि परमेश्वर ने इस प्रकार से नहीं कहा कि परमेश्वर ने इसकी निर्माण किया, इसका निर्माण It is किया। just like God said. और ये इस प्रकार से कि सिर्फ परमेश्वर ने कहा, Means like it's like a resurrection, we can say. और वो एक पुनरुत्थान के समान है। Which day it is? और वो कौन सा दिन है? Third day, right? तीसरा दिन है। And just God said seas, and the seas came. और परमेश्वर ने कहा कि समुद्र हो जाए, और वो हो गया। They appeared. और वो समुद्र दिखाई दिया। He said plants, they bring forth grass and herb yielding seed, and it was so. और वो छोटे 11. बीज वाले छोटे पेड़ और फलदायी वृक्ष, और उसने इस प्रकार से कहा और वो हो गए। Right? Means it shows it's after his kind. Right? और वो इस बात को दिखाता है कि उसके कहने के बाद वो Means हुआ। in earth these things were already there. और ये इस बात को बताता है कि ये जो बातें हैं ये पृथ्वी पर पहले ही से थी। But these things, ये जो seeds वस्तुएं and थी वो plants, पृथ्वी it's पर already पहले ही there. से थी। Just God said and it came or he और created. सिर्फ परमेश्वर ने कहा और फिर से उसका पुनर्निर्माण हुआ। Right? So this is what third day talks about. और ये जो है ये तीसरा दिन हमें इसके विषय में बताता है। In verse 12 also, and the earth brought forth grass and herb yielding seed after his kind, the tree yielding fruit, whose seed was in itself after his kind, and God saw that it was good. और And the इस evening and the morning were the third day. और इस प्रकार पृथ्वी से हरी घास और छोटे छोटे पेड़, जिनमें अपनी अपनी जाति के अनुसार बीज होता है, और फलदायी वृक्ष, जिनके बीज एक एक की जाति के अनुसार उन्हीं में होते हैं, उगे। और फिर परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है, तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार तीसरा दिन हो गया। Right? So what day 3 made? तो तीसरे दिन में किन बातों का Sea, निर्माण हुआ? land and plants. समुद्र, पेड़ पौधे और भूमि। That what all happened on the third day. और इन सब बातों का निर्माण तीसरे दिन में हुआ। Verse 14, we'll see the fourth day. और वचन 14 से हम चौथे दिन को देखेंगे। Right? We see that he created the sun, moon and stars. और हम देखते हैं कि वो जो है उसने moon. सूरज और चंद्र और तारे को बनाया। 14, and God said, let there be lights in the firmament of the heaven to divide the light from the night, and let them be for signs, for seasons, for days and for years. और फिर परमेश्वर ने कहा, दिन को रात से अलग करने के लिए आकाश के अंतर में ज्योतियां हो, और वे चिन्हों और नियत समयों और दिनों और वर्षों के कारण हो। Right? In day 4 we see, so there are lights in heaven. चौथे दिन में हम देखते हैं कि जो अंतर है, जो स्वर्ग है, उसमें कुछ ज्योतियां है। Which heaven it is? और वो कौन सा स्वर्ग है? second heaven. दूसरा स्वर्ग है। Right, from the context you can see. और वचनों से हम देखते हैं। Right, so sun, moons and stars. और सूरज, चंद्र और वो तारे। Why God created it? और परमेश्वर ने इनका निर्माण क्यों किया? For signs, for seasons, for days, for years. और For signs, it was 14. For signs, चिन्ह. हाँ, और उसने चिन्हों के लिए, और For वो seasons, नियत समयों के लिए, for days and और years. दिनों के लिए, और वो वर्षों के कारण See, उसने उसका निर्माण astrology. किया। और हम एस्ट्रोलॉजी के विषय में अगर देखते हैं, Astrology is what you say, a satanic corruption. वो एक शैतान की वो भ्रष्टता है। Right, but remember, God talks with the constellation also. परंतु याद रखिए कि परमेश्वर जो है वो Constellations, the stars and all. और वो जो तारे और तारे और जो तारांगण है उसके विषय में बात करता है। God will tell you some truth from the constellations also. और परमेश्वर जो है इन सब बातों के द्वारा कुछ सच्चाई की बातों को बताता है। Psalm 19, the heavens declare the glory of God. Right? और भजन संहिता 19 में हम देखते हैं कि जो स्वर्ग है वो परमेश्वर की महिमा को प्रकट करते हैं। Day after day after speech and knowledge and so on. You can see, read that. Okay. So
Remember, but astrology nowadays it's a scientific corruption. और एस्ट्रोलॉजी को अगर हम आज के दिनों में देखते हैं तो वो एक वैज्ञानिक के And तौर is- पे वो एक भ्रष्टता है and is purely devilish. और वो जो है वो शैतानिक है It should be not used. और वो उसका उपयोग नहीं करना It should be चाहिए not trusted. और उस पर विश्वास भी नहीं करना People, चाहिए the first thing they get up in the morning, they open their newspaper, and according to which they decide how their day will be or how they will be. और सब लोग इस प्रकार से कहते हैं कि वो सुबह उठते ही सबसे पहले वो उस वर्तमान पत्र को देखते हैं और उस पर से वो ये इस बात का अंदाजा लगाते हैं कि मेरा दिन कैसा जाएगा। Right? But why are believers looking for sign? परंतु जो विश्वासी लोग हैं वो चिन्हों को क्यों देखना चाहते You हैं? have a perfect Bible in your hand. आपके पास एक परफेक्ट बाइबल आपके हाथों में The है sun, moon, and stars, they were for signs, और जो सूरज चंद्र और जो तारे हैं वो विज्ञान के लिए but है। not for you, but it was for Israel. वो आपके लिए नहीं है परंतु वो इज़राइल के लिए है And to tell of the second coming of Jesus Christ. और उनको ये बताने के लिए है कि प्रभु यीशु मसीह का दूसरे आगमन की विषय That is the reason for signs. और वो जो है वो सिर्फ वो एक चिन्हों का सिर्फ It एक is कारण है associated with Israel and the second coming of Jesus Christ. और वो इज़राइल से जुड़ा है और परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन से जुड़ा है। And we can learn also that the sun represents we see verse 15, and let them be for lights in the firmament of heaven to give light upon the earth, and it was so. Verse 15, read the verse. और वे ज्योतियां आकाश के अंतर में पृथ्वी पर प्रकाश देने वाली भी ठहरे और वैसा ही हो गया। 16, and God made two great lights, the greater light to rule the day and lesser light to rule the night. और तब परमेश्वर ने दो बड़ी ज्योतियां बनाई, उनमें से बड़ी ज्योति को दिन पर प्रभुता करने के लिए और छोटी ज्योति को रात पर प्रभुता करने के लिए बनाया। And I like the verse how it says, and he made stars also. और मैं इस वचन को भी पसंद करता हूँ कि जिस प्रकार से लिखा है कि और तारांगन को भी बनाया Right, the stars he made also. It's like this also. He made like this. और वो तारागण को भी उसने बनाया So the greater light, और जो बड़ी ज्योति थी it represents as a type of, you can say, the sun, Jesus वो Christ. वो एक सूर्य के चित्र को दिखाती है, प्रभु यीशु मसीह के चित्र को The दिखाती है। lesser light और जो छोटी ज्योति है represents the devil, Satan. और वो शैतान को He is also the light of this world, right? और शैतान भी जो है इस संसार का वो And ज्योति है। stars, it is a picture of saints. और ये जो तारागण है वो उसके संतों को दिखाता है। In this chapter, there is a word light and day, और इस अध्याय में जो शब्द है ज्योति और दिन, right? Light and day. ज्योति और दिन, It talks about God and His people. और वो इस बात को दर्शाता है लोग और उसके परमेश्वर और उसके लोग। There is also darkness and night. और यहाँ पर जो है वो अंधियारा है और ज्योति है It is a picture of Satan and his people. और वो इस बात का चित्र दिखाता है शैतान और उसके दूतों का। So in day 4, और चौथे दिन में God created lights in heaven. और परमेश्वर ने स्वर्ग में उन ज्योतियों का निर्माण किया। Verse 17 says, and God set them in the firmament of heaven to give light upon the earth. और परमेश्वर ने उनको आकाश के अंतर में इसलिए रखा कि वे पृथ्वी पर प्रकाश दे। Verse 2, to rule over the day and over the night, and to divide light from darkness. And God saw that it was good, and the evening and the morning were the fourth day. तथा दिन और रात पर प्रभुता करे और उजियाले को अंधियारे से अलग करे और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। In every, when the day finishes, it talks about the evening and the morning were the this day. This is talking about the 24-hour period. और हर एक वचन के अंत में इस प्रकार से लिखा है कि तथा सांझ हुई फिर भोर हुआ, ये 24 घंटे के दिन के विषय में बताता है। Then we'll see the fifth day. और उसके बाद जो है हम 5वें दिन को देखेंगे। And God said, let the waters bring forth abundantly the moving creatures that hath life, and fowl that may fly above the earth in open firmament of heaven. फिर परमेश्वर ने कहा, जल जीवित प्राणियों से बहुत ही भर जाए और पक्षी पृथ्वी के ऊपर आकाश के अंतर में उड़े। Right? 21. And God created great whales and living creatures that moveth, which waters brought forth abundantly after their kind, and every winged fowl after his kind, and God saw it was good. और इसलिए परमेश्वर ने जाति जाति के बड़े बड़े जल जंतुओं की और उन सब जीवित प्राणियों को भी सृष्टि की जो चलते फिरते हैं, जिनसे जल बहुत ही भर गया, और एक एक जाति के उड़ने वाले पक्षियों की भी सृष्टि की। Read 22. And God blessed them, and saying, be fruitful and multiply, and
fill the waters in the sea, and let fowl multiply in the earth. और And the परम evening and the morning were the fifth day. और परमेश्वर ने यह कह के उनको आशीष दी, फूलो फलो और समुद्र के जल में भर जाओ और पक्षी पृथ्वी पर बढ़े। इस तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ, इस प्रकार पांचवा दिन हो See, गया। on the fourth day, what happened? और हम देखते हैं कि चौथे दिन क्या हुआ, Light appeared. जो उजियाला हुआ। Right? In the other Genesis 1:1 and 1:2, there was a light. और वचन 1 और वचन 2 में हमने देखा कि वहां पर भी उजियाला है, But this is talking about the sunlight. The परंतु Sivan sunlight. ये जो है ये सूरज के प्रकाश के Right? विषय में It's the बताता है, picture of Jesus Christ. और वो प्रभु यीशु मसीह के चित्र को That is दिखाता the है। fourth day. पर ये जो है ये चौथा दिन And था। the fifth day, और फिर पांचवें दिन what appeared? Life appeared. तो जो जीवन वहां पर दिखाई दिया, Right? First light came and then life came. और सबसे पहले उजियाला आया और फिर जीवन आया। Means it shows और ये दिखाता है that Jesus Christ is the light of the world. कि प्रभु यीशु मसीह जो है इस संसार की ज्योति है। If you have the light, अगर आपके पास वो ज्योति है, means the light of Jesus Christ, और प्रभु यीशु मसीह की जो ज्योति है वो अगर आपके पास you will है, have that eternal life. तो आपके पास वो अनंत जीवन है। So God created sea and air, animals and sea animals and air of the air animals. और हम देखते हैं कि परमेश्वर ने जो जल के जो जीवित प्राणी है और जो आकाश के जो पक्षी है उनको बनाया। Because 21 says God created great whales. और वचन 21 में इस प्रकार से कहा कि उसने जाति जाति के बड़े बड़े जल जंतुओं की रचना की, Right? He created those. और उसने उनका निर्माण किया। Right? Means in original earth they were not in existence. और वो जो ओरिजिनल पृथ्वी थी उसमें वो जीव जंतु नहीं थे। Because in this verse 22 he said, be fruitful and multiply and fill the earth, waters of the sea. और वचन 22 में जिस प्रकार से उसने कहा कि फूलो फलो और समुद्र के जल में भर जाओ और पक्षी पृथ्वी पर बढ़े। He didn't say replenish. और उसने इस प्रकार से नहीं कहा कि 28, we'll read verse 28, you will find that word. And God blessed them and said unto them, be fruitful and multiply and replenish the earth and subdue it. और He called it to the man like this. और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो, Right? और समुद्र की मछलियां तथा आकाश के पक्षी और पृथ्वी पर रहने सब जंतुओं पर अधिकार Subdue it रखो। means wash करो. वश में कर लो। Subdue it. Replenish it means it was before. Right? Like refilling, how it is refilling? Right? Refilling. Refill the pen, right? It was already there something. फिर से उसको भर Means देना। the earth was originally habited by someone. Now God's that you replenish it now. और ये जो पृथ्वी थी वो किसी और से भरी थी, परंतु परमेश्वर जो उसको फिर से वो भरता है। But now for animals means the great whales, living creatures that move with what he said he created. और जो जाति जाति के जो बड़े बड़े जल जंतु थे और उन सब जो चलते फिरते जल के जीव जंतु थे उनकी उसने सृष्टि निर्माण किया। So the living creatures और ये जो जीवित प्राणी है that had life, और जिनमें जीवन है, living creatures that had life, they had life on earth and water. और जिनका पृथ्वी पर जीवन है और जो जल के अंदर रहने वाले हैं उनका निर्माण किया। They were on fifth day. और वो उनका पांचवें दिन उसने निर्माण Move किया। on to the sixth day. और अभी जो है हम छठवें दिन को देखेंगे। 24. And God said, let earth bring forth the living creatures after his kind, cattle and creeping things and beasts of the earth after his kind. And it was so. Verse 25. And God made beasts of the earth after his kind, and cattle after their kind, and everything that creepeth upon the earth after his kind. And God saw that it was good. और फिर परमेश्वर ने कहा पृथ्वी से एक एक जाति के जीवित प्राणी अर्थात घरेलू पशु और रेंगने वाले जंतु और पृथ्वी के वन पशु जाति जाति के अनुसार उत्पन्न हो, और वैसा ही हो गया। इस प्रकार परमेश्वर ने पृथ्वी के जाति जाति के वन पशुओं को और जाति जाति के घरेलू पशुओं को और जाति जाति के भूमि पर सब रेंगने वाले जंतुओं को बनाया, और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। And you see, it not finished that, but we see in verse 6 also, 20 on the sixth day, verse 26. And God said, let us make man in our image, after our likeness, and let them have dominion over the fish of the sea, and over the fowl of the air, over the cattle, and over all the earth, and over every creeping thing that creepeth upon the earth. 26.
फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। So before moving to the creation of man, और मनुष्य के निर्माण को देखने के पहले the sixth day I want to talk about. जो छठवें दिन के विषय में मैं बात करना See, he चाहता हूँ। divided the animals in three basic classes. और उसने जो है वो प्राणियों को तीन Class. भागों में विभाजित किया। Cattle और means the जो- domesticated animals like cow, जो sheep. पालतू प्राणी है वो Then the creeping things, जो रेंगने वाले प्राणी है वो, right? Creeping things. Then what you say, the beast means the wild animals, और जो जंगली प्राणी है वो, right? In those three, और इन तीन भागों में उसने विभाजित and किया। after every category, और हर एक प्रकार के बाद में, what he said, after his kind, और उसने कहा after his kind, काय म्हणतात त्याला? उसके उत्पन्न हो, उसके अनुसार verse उत्पन्न हो। 24, read 24. फिर And God परमे- said, let the earth bring forth living creatures after his kind. 24. फिर परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी से एक एक जाति के प्राणी अर्थात घरेलू पशु और रेंगने वाले जंतु और पृथ्वी के वन पशु जाति जाति के अनुसार उत्पन्न हो, और वैसा ही हो गया। जाति जाति के अनुसार उसने Right, after उत्पन्न their हो, kind. जाति जाति के अनुसार उत्पन्न हो। Means what? Why I am telling you this? और मैं आपको ये बातें क्यों बता रहा हूँ? Means no one came from one another, और कोई भी जो है वो एक दूसरे से होकर नहीं आया। like the what evolution says, और जिस प्रकार से उत्क्रांति के जो थे ये वो that we बताते हैं came from one life and all life divided into कि everything. हम दूसरा जो प्राण है उसके द्वारा हम आए और उससे फिर सब जन विभाजित हुए। This phrase, after his kind, और उसके जाति जाति के अनुसार उत्पन्न हो। right? After their kind, what you can say, you will find the word for that. But God specifically used this, and if you see the how many times it is mentioned, और clearly says that He created everything separately. और परमेश्वर ने इन बातों का यहाँ पर उल्लेख किया है और ये बताता है कि परमेश्वर ने उन सबको अलग अलग रीति से निर्माण किया। Not that everything we all came from monkey and all. और ये सब इस प्रकार से नहीं कि हम जो है वो बंदर से आए। 26 talks about, verse 26 talks about creation of man, और वचन 26 जो है वो मनुष्य के निर्माण के विषय में बताता है। right? But you see, in very briefly God talks about, पर एक थोड़े short. संक्षिप्त में वो यहाँ पर बताता है। Chapter 1 states the creation of man, और states the fact that man created on 6th day. और ये इस Chapter one. तथ्य को बताता है कि जो मनुष्य का निर्माण हुआ वो छठवें दिन हुआ। Chapter 1 says about this. और जो अध्याय 1 है वो इस बात को बताता है। Chapter tells you how he was created, the manner of creation. और उसका जो उसका निर्माण किस प्रकार से हुआ ये वो बताता है। Means chapter 2 will supplement the chapter 1. और ये जो दूसरा अध्याय है वो पहले अध्याय की जो है वो पूर्तता करता See, है। Adam was created, how it says, in image of God. और आदम किस प्रकार से उत्पन्न हुआ तो वो परमेश्वर के स्वरूप में Right, in verse निर्माण हुआ। 27, God created man in his own image, in the image of God created him, male and female created he them. और फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए और वे समुद्र की मछलियां और आकाश के पक्षी और घरेलू पशु और सारी पृथ्वी पर सब रेंगने वाले जंतु पर। Male and female created them. वर्ष की 27. तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके Yes. उसने मनुष्य की सृष्टि की। So you know, in Genesis 2 he says that how he made the body. और हम देखते हैं कि वो जो उत्पत्ति का दूसरा अध्याय है वो इस बात को बताते हैं उसने किस प्रकार से शरीर का निर्माण किया। Adam was created in a tripart being. और जो आदम का जो निर्माण हुआ वो तीन भागों से हुआ। God is a trinity. परमेश्वर जो है वो त्रिएकता है। Right, first he created the body सबसे पहले उसके शरीर का निर्माण हुआ from dust. और मिट्टी से उसका शरीर Right, का निर्माण हुआ। you at home you read Job chapter 4 and verse 19, 1 Corinthians chapter 15 verse 45, verse 47. You go home and read, you'll see it about the dust. Means the man, he created a full grown man. और आप बाद में इसे पढ़ सकते हैं अय्यूब की पुस्तक उसका 4था अध्याय और 19वां वचन, पहला कुरिन्थियों उसका 15वां अध्याय और 45 से 47 वचन। और हम देखते हैं कि वो मिट्टी से उसका किस प्रकार से वो शरीर का उसने निर्माण He किया। created man a full grown.
और उसने पूर्ण तरह से विकसित हुआ हुआ मनुष्य उसने निर्माण किया, right, with 5 senses, और वो 5 सेंसेस से उसने उसका right, निर्माण which किया। we have, and all the body complex. और जो हमारे शरीर में वो जो 5 सेंसेस है उसके द्वारा उसने उसका निर्माण किया। Then he had a soul, और उसके बाद हम देखते हैं कि उसका जीव, right? If you go and read Hebrews chapter 4 verse 12, और आप पढ़िएगा इब्रानियों की पुस्तक उसका 4 अध्याय और उसका 12 वचन। soul is of affection, और ये means जो the emotion, और ये जो सोल है, ये जो जीव है, ये भावनाओं से भरा है, right? It has a self consciousness, और उसके जो है उसका खुद का कॉन्शियस है, self conscious, right? You are aware of yourself. और हम जो है वो खुद के विषय में वो उसको पता है। Then the spirit, और उसके बाद आत्मा, that is the breath of God, और वो जो है वो परमेश्वर की फूंक है, सांस है, breath of life. और वो जीवन का सांस है। But you know what happened when Adam sinned? परंतु आपको पता है कि क्या हुआ जब आदम ने पाप किया, He died. तो वो मर गया, He died spiritually. तो वो आत्मिक रीति से वो मृत हुआ, And from Adam, और वो आदम से we all are came, right? और हम सब आए। Adam was created in the image of God. और आदम जो है वो परमेश्वर के स्वरूप में उसका निर्माण किया गया। But what you say, we came, the next the Bible says, the all means the future generation of Adam were the image of Adam. और आदम की जो बात की जो उसका जो वंश है वो आदम के समान था, Right? The first Adam is this Adam. और जो पहला आदम है वो ये आदम है। He fell in the garden. और वो जो और जो वाटिका है उसमें वो फेल हुआ, Say garden. और वो जो गार्डन है वहां पर वो फेल हुआ। Right? And the second Adam और जो दूसरा आदम है in Gethsemane, Jesus और Christ. गेत्सेमनी में वो प्रभु यीशु In मसीह, that garden, और वो उस गार्डन में, he had a victory. और उसने वहां पर वो विजयी हुआ। Right? So the second Adam is Jesus Christ. और जो दूसरा आदम है वो प्रभु यीशु मसीह है। So Adam was given now here dominion over the earth and everything. और यहाँ पर हम देखते हैं कि आदम को जो है उन सब बातों पर उसको प्रभुता दी गई। So in day 5, तो 5वें दिन the living creatures which जो- has life on earth जो and water, जो जीवित प्राणी है और जो जल के जो प्राणी है उनका निर्माण and हुआ। on day 6 और Day 6वें 6, दिन the man was created. मनुष्य का निर्माण हुआ। Right? The number 6 is also of man. और जो नंबर जो 6 अंक है वो मनुष्य को दिखाता है। And the chapter 7, sorry, verse 7, day 7. और 7वें दिन Genesis chapter, sorry, verse 28 I will read. 30 is created, is continues, 29, sorry. And God said, behold, I have given you every herb bearing seed, which is upon the face of the earth, and every tree in which is the fruit of tree yielding seed to you, and it shall be for meat. फिर परमेश्वर ने उनसे कहा, सुनो, जितने बीज वाले छोटे छोटे पेड़ सारी पृथ्वी के ऊपर है और जितने वृक्षों में बीज वाले फल होते हैं वे सब मैंने तुमको दिए हैं, वे तुम्हारे भोजन के लिए है। Verse 30, and to every beast and to beast of the earth, and to every fowl of the air, and to everything that creepeth upon the earth, wherein there is life, I have given every herb for meat, and it was so. और जितने पृथ्वी के पशु और आकाश के पक्षी और पृथ्वी पर रेंगने वाले जंतु हैं जिनमें जीवन का प्राण है, उन सब के खाने के लिए मैंने सब हरे हरे छोटे छोटे पेड़ दिए हैं। और वैसा ही हो गया। And God saw that he made, and behold, it was very good. And the evening and the morning were the 6th day. और तब परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था सबको देखा, तो क्या देखा कि वह बहुत ही अच्छा है, और सांझ हुई फिर भोर हुआ, इस प्रकार 6वां दिन हो गया। So he made the living creatures और उसने जीवित प्राणी बनाया, on earth, पृथ्वी पर उसने जीवित प्राणियों को बनाया, creatures and man और मनुष्यों का निर्माण किया on earth. पृथ्वी पर। Okay. So now the last day 7. और अभी जो आखिरी 7वां दिन, Right, it is not in chapter 1, और वो पहले अध्याय में नहीं है, but 31 is a conclusion of chapter 1. पर 31 जो है वो इन पहले अध्याय का The वो evening and the कंक्लूजन है। morning were the 6th day. तथा सांझ हुई फिर भोर हुआ, इस प्रकार 6वां दिन हो गया। See, if God made everything good, और अगर परमेश्वर ने सब कुछ जो बनाया वो अच्छा बनाया, right, except for the second day, everything called he good. और सिर्फ दूसरे दिन को अगर हम छोड़ देते हैं तो बाकी सब दिनों को परमेश्वर ने जो है वो अच्छा कहा। Why is now bad thing happening? तो अभी जो है वो गलत बातें क्यों है? See, in Ecclesiastes verse 7, verse 20, Ecclesiastes chapter 7, 29.
Lo, chapter 7 verse 29, lo, this only I have found, that God hath made a man upright, but they have sought out many inventions. Ecclesiastes. इक्लीसियास्टिस Proverbs सभोपदेश में 29. Lo, this, what this verse is talking about? सभोपदेश God made man an upright. He created everything good. Man also is created upright, but they have sought out many inventions. सभोपदेशक की पुस्तक वचन 7:29. 29। हाँ. देखो मैंने केवल यह बात पाई है कि परमेश्वर ने मनुष्य को सीधा बनाया, परंतु उन्होंने बहुत सी युक्तियां निकाली है। Right? Man is trying to find some new things. और मनुष्य जो है वो कुछ नई बातों को खोजता God है, created everything perfectly. और परमेश्वर ने जो है वो सब बातों को सीधा बनाया है। Genesis 1 starts man in this paradise. और जो उत्पत्ति है वो उसका पहले वचन में हम देखते हैं कि जो मनुष्य है वो इस पैराडॉक्स में, चैप्टर पहले अध्याय में हम देखते हैं कि जो मनुष्य है वो इस जगह में है, पैराडाइज में है। In the last chapter of Genesis, he said man in a coffin. और उसके आखिरी अध्याय को हम देखते हैं कि मनुष्य जो है वो कब्र में है। Right, what happened? तो क्या हुआ? So the answer is in Genesis chapter 3. तो उसका जो उत्तर है वो उत्पत्ति की पुस्तक उसके तीसरे अध्याय में है। So chapter 2 talks about the supplemental things of chapter 1. और जो दूसरा अध्याय है वो पहले अध्याय की पूर्तता करता है। Chapter 3 answers why this happened. और ये क्यों हुआ इसका जो उत्तर है वो तीसरा अध्याय देता है। Why sin entered the world? और क्यों इस पाप ने इस जगत में एंट्री किया। What are the consequences of it? और उसके जो है वो कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। If you see this 6 days, अगर हम ये 6 दिनों को देखते हैं, there is also correspondence of day 1 and 4. और हम देखते हैं कि पहला दिन जो है और जो चौथा दिन है उससे कुछ जुड़ी बातें हैं। Here was also light and here is also light. और वहां पर भी उजियाला है और यहाँ पर भी उजियाला है। Here is the firmament that divides the water, और यहाँ पर जो अंतर है जो पानी को विभाजित करता है। and we see the living creatures that fly on the earth and water were made. और यहाँ पर जो firmament and the water. और जो पानी में चलने वाले जो जीव जंतु है और जो आकाश में चलने वाले जो जीव जंतु है वो है। Then it talks about the land, plants and sea. और यहाँ पर जो है वो भूमि के विषय में, उस पेड़ पौधों के विषय में और समुद्र के विषय And में। that is what on 6th day the God gave dominion over all these things. और हम 6वें दिन में देखते हैं कि मनुष्य को इन सब बातों पर प्रभुता दी गई है। And the verse 7 talks about day 7 talks about the God's rest. और जो 7वां दिन है वो परमेश्वर के विश्राम के विषय में बताता है। Rest here means he stopped, he ceased to do the work. और 7वां दिन इस बात को बताता है कि परमेश्वर ने उन कार्यों को करना बंद कर It is दिया। not like God is sleeping. और ये इस प्रकार से नहीं है कि परमेश्वर सो गया, But he rested. He blessed those days. परंतु उसने विश्राम किया। So this is all chapter 1. और ये जो है ये संपूर्ण पहला अध्याय है। So with this study you can study of yourselves also. और इस अध्ययन के द्वारा आप जो है आप खुद भी व्यक्तिगत रीति से This अध्ययन is कर how सकते Adam हो। was created and all dominion was given to him. और इस प्रकार से आदम का निर्माण हुआ और सब बातों पर उसको प्रभुता दी गई। So, okay, that's it. We'll stop.